اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ اکثر ہم ملنگوں پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جو ملنگ لوگ ہیں یہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں اور یہ علی کو اللہ سے بڑھا دیتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ جتنا ملنگ اللہ کو مانتا ہے جانتا ہے اتنا مولوی کا باپ بھی نہیں جانتا۔ اس جاہلانہ اعتراض کی بنیاد اس پر ہے کہ انہوں نے اللہ کی تعریف اپنے مولوی سے سنی ہے اور مولا علی کی تعریف فقیر سے سنی ہے۔ مولوی نے اللہ کو گھٹایا اتنا ہے کہ ہم سے علی سن کر کے ان کو بڑا نظر آتا ہے۔ اس نے مولوی سے سنا کہ اللہ وہ ہے جو رزق دیتا ہے۔ جب ہمارے پاس آیا تو ہم نے کہا رزق تو مولا علی بانٹتا ہے۔ اس نے اپنے مولوی سے سنا کہ اللہ وہ ہے جس کو عزت دے جس کو ذلت دے۔ جب ہمارے پاس آیا تو ہم نے کہا کہ عزت اور ذلت علی کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے اپنے مولوی سے سنا کہ اللہ وہ ہے جو غفور اور رحیم ہے، گناہ معاف کرتا ہے۔ جب ہمارے پاس آیا تو ہم نے دعویٰ کی گناہ معاف کرنے والا تو علی ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آج بھی نجف جاؤ، مولا علی کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے السلام علیک یا باب الحطہ، سلام ہو تجھ پر اے گناہ معاف کرنے والے۔ آج بھی مولا کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے، تو ہم کسی دلیل کے بغیر تو بولتے نہیں۔ اس نے اپنے مولوی سے سنا کہ اللہ وہ ہے جس کو بیٹا دے جس کو بیٹی دے۔ جب ہمارے پاس آیا ہم نے کہا یہ تو علی کے بندے کام کرتے ہیں کلندر جیسے، جس کو بیٹا دے جس کو بیٹی دے۔ اس نے اپنے مولوی سے سنا کہ اللہ وہ ہے مردے کو زندہ کرتا ہے۔ جب ہمارے پاس آیا ہم نے کہا یہ تو علی کے بندے کلندر جیسے کرتے ہیں مردے زندہ۔ لہٰذا اللہ کی عزت، اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان کا پتہ ہی مولا علی سے جلتا ہے۔ ایک ہی فکرے میں اللہ کی تعریف کرنے لگا ہوں کہ اللہ وہ ہے جس کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ جو سمجھ میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ اس کو کہتے ہیں جو عقل میں نہ آئے۔ اب مولوی نے جو اللہ بتایا ہے اس کو تو بچہ بھی سمجھ جائے۔ ہمیں مشرک کہنے والے جانتے ہو شرک کیا ہے؟ شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کے دو بڑے قسم ہیں، ایک شرک جلی، دوسرا شرک خفی۔ دو شرک ہیں، باقی جتنے بھی شرک ہیں ان دونوں میں سے نکلتے ہیں، شرک جلی شرک خفی۔ اللہ کی ذات میں شرک، اللہ کی صفات میں شرک، عبادات میں شرک، یہ بڑے شرک ہیں اور باقی جو شرک ہیں ان سے نکلتے ہیں۔ اللہ کی ذات میں شرک یہ ہے کہ کسی کو بھی اللہ کی وحدانیت میں شریک کرنا، مثلا 2 یا 3 خدا ماننے والا مشرک ہے، یہ ذات میں شرک ہے۔ اور اللہ کی صفات میں یہ شرک ہے کہ صفتوں کو ذات سے زیادہ مانا جائے۔ جو صفتوں کو عین ذات نہ جانے وہ مشرک ہے۔ خدا کی صفتیں عین ذات ہیں، جیسے شہد میں مٹھاس، اسی طرح صفتیں ذات میں ہیں۔ اگر ہم شہد سے مٹھاس کو نکال دیں تو وہ شہد نہیں کہلائے گی۔ صفتوں کو ذات سے جدا کیا جائے تو پھر وہ ذات نہیں کہلائے گی۔ اسی طرح صفات میں شرک، جو اللہ کے صفتوں کو ذات سے الگ جانے الگ مانے وہ بھی مشرک ہے، یہ ہے صفات میں شرک۔ اور عبادات میں شرک یہ ہے اگر عبادت کے وقت خیال اور نیت غیر خدا کی طرف ہو تو یہ شرک کہلاتا ہے، اور یہ قرآن کی آیات میں ملتا ہے، کافی آیات میں ملتا ہے۔ جیسے سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں ارشاد ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو بھی اپنے رب کی ملاقات کا خواہش مند ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو بھی اپنے رب کے دیدار کا خواہش مند ہے، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے عمل کرے عمل صالح، ولا یشرک بعبادہ ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کس کو شریک نہ کرے۔ بات واضح ہو گئی، قرآن کی آیت ہے کہ عبادت کے وقت دنیا کی طرف دل کو ہلانا یا دنیا کے خیال رکھنا یہ شرک ہے۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا لا صلاۃ
इल्ला बेहुजूर अलक़ल्ब, कल्ब की हुजूरी के बग़ैर नमाज सलात नहीं हो सकती। तो इबादत में शिरक ये है कि इबादत के वक्त गैर की तरफ अपनी ख़याल को रखना, अपने तस्वर को रखना, ये इबादत में शिरक है। जैसे अल्लाह ने कुरान पाक की सूरह यासीन की आयत नंबर 60 में इरशाद फरमाया, अलम अहद इलैकुम या बनी आदम, ऐ आदम की औलाद, क्या मैंने तुमसे अहद नहीं लिया था अल्लाह ताबुदु शैताना, कि शैतान की इबादत न करना। भाई कौन करता है शैतान की इबादत? सारे शैतान पे लानत करते हैं। ये इबादत में वसवसों का आना, ख़यालों का आना शैतान की इबादत है। ये मतलब ख़याल का आना, हमने दुनिया के बंदों को इबादत में शरीक कर दिया, तो ये कहलाता है इबादत में शिरक। ज़ात में शिरक, सिफ़ात में शिरक, इबादत में शिरक। दूसरा है इबादत में रिया, ये भी शिरक कहलाता है। जैसे कुरान पाक की सूरह माउन में इरशाद है, फ़वैलुल लिलमुसल्लीन, नमाजियों के लिए हलाकत है, अल्लज़ीन हुम अन सलातहिम साहून, जो अपनी नमाज से गिफलत करते हैं, सलात से गिफलत करते हैं, यानी उनको सुधारने की कोशिश नहीं करते। अल्लज़ीन हुम युराऊन, लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं, ये कुरान है, लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं, ऐसे नमाजियों के लिए हलाकत है। तो ये रिया भी शिरक है। और हुजूर पाक की हदीस है, हुजूर ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन अल्लाह कहेगा, ऐ रियाकारो, जाओ उसके पास जाओ अजर लेने के लिए, जिसको दिखाने की खातर तुमने फ़लाँ फ़लाँ अमल किया है। तो जो दूसरों को दिखाने की खातर अमल करता है वो अमल ज़ाया है, किसी काम का नहीं, क्योंकि ये तौहीद में शिरक है। लोगों के सामने मुत्तकी, परहेज़गार, आबद ज़ाहिर होने के लिए कोई भी अमल करना शिरक है। मौला से पूछा गया, मौला शिरक किसे कहते हैं? मौला अली से पूछा गया, मौला शिरक किसे कहते हैं? मौला ने फरमाया, जो हम के अलावा, हम हुज्जतों के अलावा खुद को हुज्जत कहलाए वो मुशरक है, हम के अलावा खुद को आयतला कहलाए वो मुशरक है, हम के अलावा खुद को इमाम कहलाए वो मुशरक है, हम के अलावा खुद को मुज्तहद कहलाए वो मुशरक है। और रसूल पाक की हदीस है, अम्माली शेख सुदूक की किताब है, जुल्द नंबर 1 सुफ़ा नंबर 55, हुजूर ने फरमाया, जो मेरे बाद अली से शिरक करे वो मुशरक है, जो मेरे बाद अली से शिरक करे वो मुशरक है। अब मौला अली से शिरक यानी कि मौला के अलकाब की चोरी करना। मौला इमाम है, कोई खुद को इमाम कहलाए वो मुशरक है। ये रसूल की हदीस है, अम्माली शेख सदूक में, कोई खुद को आयतला कहलाए मुशरक है, मुज्तहद कहलाए मुशरक है, इमाम कहलाए मुशरक है, वली कहलाए मुशरक है, क्योंकि ये मौला अली के अलकाब हैं, ये है अली से शिरक। तो मेरे दोस्तों, ऊपर जो मैंने शिरक के आसार और निशान बयान किए, बताओ इनमें से किसी खफी या जिल्ली शिरक की खातर हमें मुशरक कहते हो? इनमें से कौन सा है शिरक जो हम करते हैं? न हम ज़ात में शिरक करते हैं, न सिफ़ात में शिरक करते हैं, न इबादात में शिरक करते हैं, न हम किसी कट्टड़ू मुल्ले को हुज्जत मानते हैं, न किसी दालखोर को मुज्तहद मानते हैं, न किसी को मौलाना कहते हैं, न किसी को आयतुल्ला कहते हैं, न किसी मुल्ला को वली मानते हैं। फिर हमको मुशरक क्यों कहा जाता है? हम तो इन सारी शिरक से पाक और आज़ाद हैं। कहते हैं अली से मदद मांगना, अली से हाजत तलब करना शिरक है। भाई अगर ये शिरक है फिर तो सारा जहान मुशरक है, मोह तो कोई मिलेगा नहीं। कभी कभी कुरान को गौर से भी पढ़ लिया करो। सूरह नमल की आयत है, आयत नंबर 38। जनाब सलेमान नबी की बज़म में बैठने वालों को कहा, कौन है जो बिल्कीस का तख्त मेरे पास लाएगा, इससे पहले कि वो लोग मेरे इताअत गुजार बन के आएँ। जिन्नों में से एक ने कहा, मैं इसका तख्त ले आने की ताकत रखता हूँ, जो आपका दरबार से उठने से पहले लेकर के हाज़िर करूँगा। उस शख्स के पास, कुरान कहता है, उसके पास उम्मुल किताब यानी किताब का थोड़ा इल्म था, यानी उसके पास इस समय आज़म था। उसने कहा कि मैं आँख
छुपकने से पहले बिल्कीस के तख्त को हाज़िर करूँगा। उसने हाज़िर किया। सुलेमान नबी ने जब अपने आगे तख्त देखा तो कहा, काल हाज़ा फ़ज़ल रब्बी, ये तो अल्लाह के फ़ज़ल से है, यानी ये मेरे रब की दी हुई ताकत से तू लाया है, तेरी अपनी ताकत नहीं है। अब इंसाफ से बताओ, सुलेमान जैसा नबी जिन्न से मदद मांग रहा है, जिसके पास किताब का थोड़ा इल्म था और जिसके पास इसम आज़म था, और हम उस अली से मदद मांगते हैं जो खुद किताब है और जो खुद इसम आज़म है, जो खुद रब का इसम है, तो हम मुशरक कैसे बन जाते हैं? तुम मुसलमानों ने अकीदा कहाँ से लिया है? खुदा की कसम, तुमने तो ढोंग रचा के रखा है। कहाँ से अकीदा लिया है तुमने? अली अल्लाह की ताकत का नाम है, अली अल्लाह की कुदरत का नाम है, अली अल्लाह का हाथ है, अली अल्लाह की ज़बान है, अली अल्लाह की आँख है, अली अल्लाह का चेहरा है। किस से भी मांगोगे तो चेहरे के सामने मांगोगे ना। अगर उसके पीछे खड़े होकर के मांगोगे, वो कहेगा कम वक्त तुझे मुझे मेरे चेहरे से करहत आती है, नफ़रत आती है, सामने क्यों नहीं मांगता? जब हम अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह से सामने मांगेंगे ना, चेहरे के सामने खड़ा होकर के। तो चेहरा कौन है? अली है, तो अली के पास जाना पड़ेगा। और ये रसूल की हदीस, याली अंत बाबुल्लाह, याली तो अल्लाह का दरवाज़ा है। जब हम अल्लाह का दरवाज़ा है अली, हम किसी से भी खैरात मांगते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। अब अल्लाह से मांगेंगे तो दरवाज़े पे जाएंगे ना, अली के पास जाने पड़ेगा ना। मौला अली अल्लाह का दरवाज़ा है। ये वसीला हैं, इन वसीले के बगैर हम अल्लाह तक न कुछ पहुंचा सकते हैं और न कुछ अल्लाह से ले सकते हैं। अब अल्लाह अपने हबीब से बात करता है शब मेराज अली के वसीले। देखें, अल्लाह अपने हबीब से बात करता है अली के वसीले। वो अल्लाह होकर अपने हबीब से अली के वसीले बात और मुलाकात करता है, और तुम बंदे होकर के अल्लाह से बगैर वसीले के बात करोगे, मुलाकात करोगे, कुछ मांगोगे, कुछ लोगे, कुछ पहुंचाओगे। इसलिए मेरे मौला ने कहा, मैं अब्द भी हूँ, मैं माबूद भी हूँ, यानी तुम्हारा माबूद हूँ, उसका अब्द हूँ। तुम मुझे सजदा करो, मैं उसको सजदा करके तुम्हारे पहुँचा दूँगा। क्योंकि अली अल्लाह का चेहरा है, चेहरे को सजदा है। तो ये वसीला है मौला अली मुश्किल कुशा। इसी के वसीले के बगैर हम न खुदा से कुछ ले सकते हैं, न कुछ खुदा तक पहुंचा सकते हैं। नबी की बेटी जनाब ज़ारा सलाम अलैहा ने भरी दरबार में खुतबा दिया था। उस खुतबे में एक बीबी का फ़िक्रा है जो आपको बताना चाहता हूँ। भरे पड़े हैं किताब। इब्ने अबी हदीद शरह नाजल बलागा जुल्द नंबर 4 सुफ़ा नंबर 79 में लिखा है इस बीबी के खुतबे को। बीबी कहती है, व अहमदुल्लाहिल्लज़ी बेअज़मतिही व नूरिही यब्तगी मन फ़िस समावात वल अर्ज़ इलैहिल वसीलतो व नहनु वसीलतहू फ़ी ख़ल्क़िही। बीबी कहती है, हमद उस अल्लाह की जिसकी अज़मत और नूर की सबब आसमानों और ज़मीनों की मखलूक उसकी तरफ वसीला ढूंढती हैं, और मखलूक का वसीला हम हैं। व नहनो वसीलतहू फ़ी ख़ल्क़िही, और मखलूक़ात का वसीला हम हैं। तो ये हैं वसीले। इन वसीले के बगैर हम अल्लाह से कुछ लेंगे और अल्लाह तक कुछ पहुँचाएँगे। अली से मांगना अल्लाह से मांगना है, अली का देना अल्लाह का देना है, अली का फ़ैल अल्लाह का फ़ैल है। अल्लाह जो भी काम करता है अली के वसीले करता है। जो अली काम करता है वो अल्लाह का काम है। अब कुरान पढ़ें सूरह अनफ़ाल को। अल्लाह कहता है, फ़लम तक़्तलूहुम वलाकिन अल्लाह क़तलहुम। ये तुमने कत्ल नहीं किया, मैं अल्लाह ने कत्ल की हैं। अब मुझे बताओ वो कौन सी जंग है जिस जंग में अल्लाह तलवार लेके आया है काफिरों को कत्ल करने के लिए? मार अली रहा है। अल्लाह कहता है कि मैंने कत्ल की है। तो अली के फ़ैल को अल्लाह अपना फ़ैल कह रहा है। तो अली मसदर फ़ैल अल्लाह का है। अल्लाह जो भी काम करता है अली के वसीले करता है, और हम जो भी चीज़ अल्लाह से ले सकते हैं, पहुँचा सकते हैं, अली के वसीले पहुँचा सकते हैं। अब बताओ मुशरक कौन है? अली को छोड़ करके 2 टक्के के मुल्ला को हुज्जत तुम कहो, मुशरक हम। अली को छोड़ करके बाज़ारी मुल्ला को मौला तुम कहो और मुशरक हम। मौला को छोड़ करके दाल खोर को आयतला तुम कहो, मुशरक हम। नछेड़ मनगानू
جس آگ نے طور کو جلا ڈالا تھا وہ ہم اپنے سینے میں رکھتے ہیں، کہیں تم کو جلا نہ ڈالیں۔ دوم میں یاد رکھیے گا، یا علی مدد۔